So very good morning to all once again. See, today is very important lectures, that is stereochemistry. Now in today's lectures we are going to take types of different type of representation, how to represent molecule in a different way. So this is very important. In last lectures we have discussed a lot of things, that is how to draw particular Newman how to write a Fisher projection, how to give nomenclature using Fisher projection. Also, along with that, we have also taken some example in which plane is present, and because of the plane of symmetry, molecule remains achiral. So see, chiral, it is a property of entire molecule. It is independent on the this is independent on particular number of chiral center, but it is a property of the entire molecule. Now see, look at here. I will give you certain examples in which there is a chiral center, but molecule is achiral due to presence of plane of symmetry. See, look at here. See, this is an example. Cyclohexane. Now suppose see, this group is front side and this group is back side. Is it this molecule is chiral or it's achiral? Write down in the chat box. एक काम करते हैं, आपका माइक में भी यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, so you can use your mic, no problem. Now so you can use your mic to give answer, no problem. Now see, this molecule is achiral because the reason is chiral plane is present. See, it bisect the molecule. Okay, so first one is achiral because of presence of chiral plane. Plane of symmetry is there. It's having sigma plane. Chiral, it is not a chiral plane, but it's a sigma plane. Any kind of plane is present, then molecule is achiral. Now you tell me, what's about this one? This Cl is on our side, top of the plane. This is also in a top of the plane. This molecule is chiral or achiral? Sigma plane hoy to achiral, because here see you can put sigma plane. Okay, this plane which bisect the molecule, good, achiral. This is also achiral. What's about this one? One Cl is on back side, another is on front side. Can you take plane here? Are the plane lay sakai? Sir, chiral. There is no any kind of plane. Okay, it's asymmetric. An asymmetric molecule is chiral. Good. This is chiral because one Cl is on our side, another Cl is on the back side. So you are not getting mirror image. What's about this one? This is chiral or achiral? It's a chiral. It is again chiral. You can have a ship. You cannot take plane here. Okay, if this plane is not taken, so it's a chiral. What's about this one? Sir, chiral. It is achiral because you can have a see here plane of symmetry, so it's achiral because presence of sigma plane. So any kind of plane is present in the molecule, then it is achiral. See, this Br is at the top of the plane. Here also Br is at the top of the plane. What's about this molecule? Sir, chiral. It's a plane of symmetry, so it's achiral. So in this way, you can decide whether given molecule is chiral or achiral. Cl. What's about this one? It is chiral or achiral? Sir, achiral. It is achiral because it has
plane of symmetry here. See, this is here it has plane of symmetry. Passing through plane which is passing through BR, so which bisect the molecule, it has sigma plane. Any kind of symmetry is there, then molecule is chiral. So in this way you can decide whether given molecule is chiral or not. Now see how to represent different configurations. So see, there are different projection. Fisher projection you are knowing very well. This is a Fisher projection. This is your Fisher projection. Now how to write down corresponding Newman and Sohrs projection from Fisher. So see, Sohrs projection is written in this way. This is a Sohrs projection. This is a eclipse type geometry, so it is called eclipse Sohrs. Now this carbon is your front carbon in a Newman projection. आप जब इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे तो एक कार्बन जो है वो फ्रंट कार्बन रहेगा, आगे वाला, ये पीछे वाला रियर कार्बन रहेगा. सो दिस कार्बन इज नथिंग बट फ्रंट कार्बन. So now here CH3 group is there, you can write down here. Here COOH is there, you can write down here. Now you tell me Cl is on which side? It is on right hand side or left hand side? Right, sir. Right side. So write down here it is on right hand side and H is on left hand side. What's about in this compound? Sorry, in this carbon, OH group is on again right hand side, H is on left hand side. So this is called eclipse Sohrs. Now you can give rotation and convert eclipse Sohrs to particular. You can say eclipse is converted to stagger type arrangement. This type configuration, see. Okay, so here you give the rotation, so CH3 comes to here. ये आपको इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना है. CH3 के बिल्कुल पीछे Cl है, इसके बिल्कुल पीछे H है. आप रोटेशन देंगे तो तीनों एक साथ में ऐसे रोटेट हो गए. सो CH3 गोज टॉप ऑफ दी प्लेन. सो ऐसे रोटेट करके आप ये दोनों को एक दूसरे को एंटी पोजीशन पे शिफ्ट करो, COOH एंड CH3 को. So you are getting, see, this one. This is called anti-Sohrs, or you can say staggered type Sohrs. Now from this staggered Sohrs you can easily write down Newman projection. This is your Newman projection. This is your front carbon. This is your front carbon. Okay, here CH3 group is there, here H is there, here Cl. now ये दोनों के बीच में यहाँ पे रियर कार्बन जो है, रियर कार्बन, वहाँ पे COOH ग्रुप है. रियर कार्बन इसके पीछे होगा, दैट यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, ये आपको दिखाई नहीं देगा, बट इसके साथ जो ग्रुप है वो आप आराम से देख पाओगे. सो दिस इज ए COOH, OH is on the right hand side and this is on the left hand side. So this is called Newman projection. So you are getting, see, Newman projection from Fisher projection by this route. But you can have a seesaw technique. You can also have a reverse path to convert given Newman projection to Fisher. Suppose आपको ऐसे Newman projection आपको दिया है और आपको Fisher में इनको convert करना है, तो कैसे कर पाओगे? So very easiest way, see, first write down staggered Sohrs. इसी तरह ये आपका फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन पे टॉप ऑफ द प्लेन कौन सा ग्रुप है? फ्रंट कार्बन जो है यहाँ पे, ये फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे टॉप ऑफ द प्लेन जो ग्रुप है वो COOH है. राइट साइड कौन सा ग्रुप है? Br. और लेफ्ट हैंड साइड Cl. ओके ओके, यहाँ पे CH3 नीचे आएगा, सीधी CH3. राइट साइड है OH है, लेफ्ट हैंड साइड H है. अभी आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, जैसे इक्लिप्स में कन्वर्ट किया आपने, ऐसे रिवर्स लेते रहो आप. ऐसे इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, इस कार्बन को एज इट इज लिखना है. यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला, यहाँ पे COOH नीचे लाओ तो ऑटोमेटिकली Br यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे. इसमें से डायरेक्ट आपको फिशर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो. ये कार्बन, सॉरी, जो नीचे है उनको ऊपर लिखो.
ओके, वो जरूरत नहीं है। सी ये COOH है यहाँ पे, फ्रंट कार्बन ये है, सॉरी फ्रंट कार्बन वाला नीचे आएगा। दिस इज अ फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है आपका सेकेंड लास्ट। CH3 नीचे है इनको ऊपर। ये OH राइट साइड है तो यहाँ पे आप राइट साइड लिखो। यहाँ पे Br लेफ्ट हैंड साइड है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ऐसे आप लिख सकते हो। बट सी ये सब चीज़ें कन्वर्जन करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट एक टेक्निक है। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन डायरेक्टली फिशर प्रोजेक्शन फ्रॉम न्यूमेन, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो उस केस में से इट्स ए वेरी सिंपल जॉब। आपको क्या करना है, जो ग्रुप यहाँ पे टॉप ऑफ द प्लेन है इसको नीचे लिखना है, और जो ग्रुप नीचे है उनको अबोव द प्लेन लिखना है। फर्स्ट आपको ये करना है, सी यहाँ पे एक ग्रुप जो COOH है, इट इज एट द टॉप ऑफ द प्लेन, इसको आप यहाँ पे नीचे लिख दो। और ये जो CH3 नीचे है इनको टॉप ऑफ द प्लेन लिख दो। पहला काम ये करो। दूसरा, ये जो फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप है, फ्रंट वाला, दैट इज सेकेंड लास्ट कार्बन, ये फ्रंट वाला, वहाँ पे ग्रुप की पोजीशन है वो आप चेंज कर दो। वहाँ पे ग्रुप की पोजीशन है, वो कैसी पोजीशन है? Br राइट साइड है एक्चुअली, तो उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है इनको राइट हैंड साइड, यहाँ सिर्फ चेंज करना है दोनों की पोजीशन। बट रियर कार्बन पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसलिए OH राइट हैंड साइड है तो इनको राइट हैंड साइड ही लिखो। H लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, तो आपको डायरेक्टली विथ शॉर्ट टेक्निक ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट फिशर प्रोजेक्शन। ओके, दिस इज द वे टू गेटिंग फिशर प्रोजेक्शन। So question is asked like that, what is relationship among following? एक स्ट्रक्चर सपोज आपको ऐसे देते हैं, COOH, CH3, OH, H. Second structure is given like this type. Third structure is given like this type. Fourth structure is given like this type. तो इस केस में से आपको सब में से सारे जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम है, बिकॉज यहाँ पे COOH वाला कार्बन है, उसके साथ OH वाला कार्बन है, अगेन CH3 के साथ भी OH वाला कार्बन है, तो ये सब बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सब कुछ सेम है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये तो फिशर प्रोजेक्शन, तो आप आराम से इसका नेम दे पाओगे। बाकी स्ट्रक्चर को आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, बाद में उसका RS नोमेनक्लेचर मेंशन करना है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा यहाँ COOH वाला कार्बन है, उसका सेकेंड नंबर देना है, इसका थर्ड नंबर। तो आपको ऑलवेज सेकेंड का कंपैरिजन सेकेंड नंबर कार्बन पे करना है, थर्ड का कंपैरिजन थर्ड नंबर पे। अगर सेकेंड नंबर का आप RS नोमेनक्लेचर देंगे तो आपको पता चलेगा इट इज 1 2 2 2 2 3, दिस बिकम S, बट आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन इट बिकम R, क्योंकि फोर्थ नंबर ग्रुप है, इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो थर्ड कार्बन है उसका आप कन्फिग्रेशन मेंशन करोगे तो एक नंबर अगेन गिवन टू OH, सेकेंड नंबर गिवन टू COOH टाइप कार्बन, दिस इज गॉट नंबर 1, दिस नंबर 2, नंबर 3 एंड 4, तो ये R हो जाएगा। आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन इट बिकम S, सो दिस बिकम SC। एक कन्फर्म हो गया, इसका नेम हमने दे दिया। उसके बाद इसका कन्वर्जन फिशर में करते हैं। ये कार्बन जो है CH3 इसको नीचे लिखते हैं, ये कार्बन है इनको टॉप ऑफ द प्लेन लिखते हैं। अभी यहाँ जो OH राइट हैंड साइड है उनको राइट हैंड साइड लिखते हैं, ये OH राइट हैंड साइड है इनको भी राइट हैंड साइड है इसी तरह। ये OH राइट हैंड साइड है, COOH टॉप ऑफ द प्लेन है, उसका नेम तो R है, वो पता है, हमने देख लिया है।
बाकी रही बात थर्ड नंबर कार्बन की, तो यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड था तो इनका नेम एस था, तो यहाँ राइट हैंड साइड है तो इनका नेम आर आ जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड नंबर 2 आ गया। अभी थर्ड और फोर्थ को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो इससे शॉर्ट टेक्निक आप यूज़ करो। ये जो CH3 फ्रंट कार्बन ये है, इनको पहले लिखो, ये फ्रंट कार्बन। जो ग्रुप टॉप ऑफ द प्लेन है इसको यहाँ पे नीचे लिखो, जो ग्रुप नीचे दिखाई देता है इनको आप ऊपर की साइड लिखो, यहाँ पे अपर साइड लिखा यहाँ। उसके बाद यहाँ OH इज ऑन राइट हैंड साइड, इज इट इज, यहाँ जो OH है इनको कुछ यहाँ चेंजेस कर देना है। सी आपको जो फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे अगर डायरेक्ट आप शॉर्ट टेक्निक से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो OH ग्रुप आपका राइट साइड है इनको लेफ्ट साइड लिखो, बट यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसी तरह। तो OH राइट हैंड साइड है, अगेन COH वाला कार्बन पे, तो इनका नेम हमने R दिया है। OH लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका नेम S दिया है, दिस इज 3S। ऑलरेडी किसी ने बताया कि दोनों होमोमर्स है, एक चैट बॉक्स में ज्योति ने लिखा है, सो इट्स करेक्ट, नेम सेम है तो डेफिनेटली दोनों होमोमर्स रहेंगे। यहाँ पे देखो COH इस टॉप ऑफ द प्लेन है, इनको यहाँ पे नीचे लिखेंगे, CH3 को ऊपर लिखेंगे। इस कार्बन में आपको चेंज करना है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, इनको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, बट यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे जो ग्रुप दिया है ऐसे ही लिखना है दोनों। अभी देखो इनका आप ये कार्बन जो है नीचे वाला, इनका कंपैरिजन ये सेकंड रहेगा, क्योंकि COH के पास वाला कार्बन है उसको हमने सेकंड नंबर दिया है, ये थर्ड नंबर वाला रहेगा, तो सेकंड का नाम पहले लिखना है। तो 1 नंबर COH को देंगे, 2 नंबर COH को, 1 नंबर OH को, 2 नंबर COH, थर्ड नंबर पूरे ग्रुप को, और हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर। तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे 1 2 2 2 2 3, एंटी क्लॉकवाइज टर्न एस होगा, आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन इट बिकम आर। इसी तरह आपको जो कार्बन नंबर 3 है इनका नेम यहाँ पे मेंशन करना है, तो वो कैसे रहेगा, 1 नंबर OH को दे दो, 2 नंबर है पूरे ग्रुप को, 3 नंबर CH3 को, 4 नंबर H को, 1 2 2 2 2 3 it is anti-clockwise turn, but hydrogen is on horizontal line, so after changing direction it become 3R. So what is the relationship between 1 and 2? You tell me, what is the relationship between 1 and 2? Diastereomer. Diastereomer, because 50% part is similar and 50%. Diastereomers. Good, diastereomer. What's about 1 and 3? Homomer. Homomer, sir, identical. Identical, same name है, homomers. What's about 1 and 4? Sir, homomer. Diastereomer. डायस्टेरियोमर आएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे दोनों के नेम सेम है, बट 3 पे मिरर इमेज है। व्हाट्स अबाउट 2 and 4? Homomer. गुड, सो दे आर होमोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह से आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करके आप नेम डिसाइड कर सकते हो, वेदर दे आर होमोमर्स और वेदर दे आर एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर। ओके, सो दिस टू आर आल्सो डायस्टेरियोमर, 3 and 4। ओके, जैसे आप आंसर देते हो उसके बाद आपका माइक है, इसको आपको म्यूट कर देना है ताकि unnecessary disturbance ना आए। Now see how to represent flying wedge projection. This is again very very important. So in the flying wedge projection actually ऐसे प्रोजेक्शन है, ऐसे दो नॉर्मल लाइन देते हैं, एक ग्रुप है ऐसे डार्क लाइन पे देते हैं, दूसरा जो ग्रुप है वो आपको ऐसे देते हैं। सी, सो यहाँ R1 R2 एंड कार्बन वो एक ही प्लेन में, दे आर इन द प्लेन, they are in the plane, and this group is towards viewer and this group is away from viewer. This is R3 and R4. यहाँ पे आपको क्या करना है, सी whenever you are going to give name to flying wedge projection, तो आपको जो फोर्थ नंबर ग्रुप है वो कहाँ पे आप लाओगे, कौन सी पोजीशन पे, लोवेस्ट रैंकिंग ग्रुप R4 की जगह, R4 पर लोवेस्ट रैंकिंग ग्रुप prefer at R4 position because this is away from viewer.
तो अगर वो वहाँ पे नहीं दिया है आपको, तो आपको क्या करना है, डबल इंटरचेंज मेथड का यूज़ करके इनको वहाँ पे ये ग्रुप को वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर देता हूँ कि भाई मेंशन रिलेशनशिप अमंग फॉलोइंग। Suppose one is this type of structure is given like COOH, CH3, H, OH. Second one is आपको इन दोनों के बीच में से रिलेशनशिप मेंटेन करना है और मेंशन करना है। तो कैसे करोगे, कौन सी रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी चलो एक ग्रुप आपको दे दिया Cl, सपोज यहाँ पे आपको OH दे दिया है, ये दोनों का भी नेम देना है। ये दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे Cl OH, तो इस केस में से आपको डबल इंटरचेंज मेथड का यूज करना है। डबल इंटरचेंज मेथड क्या है, पहले वो यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। से डबल इंटरचेंज मेथड ये है, आपको पता है कि फोर्थ नंबर ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए। फोर्थ नंबर वाला जो अवे फ्रॉम व्यूअर मीन्स ये यहाँ डॉटेड लाइन पे होना चाहिए। ओके, सपोज आपको फोर्थ नंबर ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप क्या करोगे उस केस में। सपोज आपका R1 फोर्थ नंबर ग्रुप है। ओके, फॉर एग्जांपल सी आपका सपोज यहाँ पे Cl है, समझ लो, यहाँ Br है, यहाँ H है और यहाँ पे OH है। तो इस केस में आपको फोर्थ नंबर ग्रुप यहाँ पे चाहिए, OH की जगह चाहिए या नहीं, किसकी जगह चाहिए फोर्थ नंबर ग्रुप, OH की जगह। ओके, तो डबल इंटरचेंज का मेथड का मीनिंग क्या है, पहले आपको जो चाहिए वो दोनों का आप इंटरचेंज कर दो। आपको OH यहाँ पे चाहिए OH की जगह, तो वहां पे रख दो, तो ऑटोमेटिकली ये OH कहाँ चला जाएगा, OH हाइड्रोजन की जगह। ओके, ये दोनों को इंटरचेंज किया आपने। आपको फोर्थ नंबर यहाँ चाहिए था, यू वांट हाइड्रोजन ओवर हियर, तो आपने वहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिकली OH है वो हाइड्रोजन की पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ तक पता चल गया आपको। यस सर। ओके, जब आप ये चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द टू ग्रुप, ये दोनों को छोड़ के बाकी के जो दो ग्रुप है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो तब जाके इनका कॉन्फ़िगरेशन है दैट रिमेन्स एज इट इज, डज नॉट चेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों ने पोजीशन चेंज किए, तो ऑटोमेटिकली Cl एंड Br कैन चेंज देयर पोजीशन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड विच मेथड, डबल इंटरचेंज। आपको इसका यूज करना है। सी अभी आपको इनका नेम देना है, तो आप Br को 1 नंबर देंगे, OH को 2 नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Br से कम है। सी 2 नंबर Cl को आएगा, सॉरी, बिकॉज Cl का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज़्यादा है। 3 नंबर ऑक्सीजन, 4 नंबर हाइड्रोजन। नाउ यू टेल मी, अभी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ नंबर ग्रुप ऑलरेडी अवे फ्रॉम व्यूअर है। तो आप ऐसे 1 to 2 2 to 3 सर्कल ड्रॉ करोगे, ब्रोमीन टू क्लोरीन, तो कौन सा नेम आएगा, एस। एस आ जाएगा। सी दिस इज एक्चुअली दिस इज नंबर 3, so it's a S, this is the S configuration। चलो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऐसे है, दिस इज एस, दिस बिकम एस। अगर आप यहाँ पे ऐसे नंबर देते हैं इनको 1 2 3, तो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन सी ऐसे आर आता है, बट हाइड्रोजन आपके नज़दीक है तो ऑटोमेटिक आपको एस मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों सेम ही है। बट इस मेथड का यूज़ आप मत करना, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन ये सिंपल लाइन पे दिया है तो इस टाइम गलती हो सकती है, इसलिए बेटर इज ए डबल इंटरचेंज मेथड।
सपोज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, Br यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है और OH यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, समझ लो यहाँ पे OH है, तो इसका नेम कौन सा आएगा? दो के बाद आपको अब कैसे ही नेम देंगे ना सी, तो आपको आर लगेगा, सी। ओके, बट एक्चुअली इट मे बी आर और इट मे बी एस, वी डोंट नो। तो वी रिक्वायर्ड विच मेथड, कौन से मेथड यूज करना है? डबल इंटरचेंज। डबल। हाइड्रोजन को किसकी जगह लिखेंगे? OH की जगह OH की जगह, क्योंकि वी रिक्वायर्ड इट इज अवे फ्रॉम व्यूअर, तो OH ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। जिसको साइड में अननेसेसरी वॉइस आ रहा है तो वो लोग क्या करें, अपना माइक जो है ना, जैसे ही आंसर देते हो बाद में म्यूट कर देना। अगर 1 सेकेंड आप आंसर दे रहे हो, अनम्यूट करो, जैसे ही आपका आंसर खत्म होता है आप म्यूट कर देना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। सी OH यहाँ रख दिया मैंने, OH। बाकी के दो ग्रुप बचे, Br यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे। अभी आप 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इनको, 3 नंबर इनको, तो इसमें भी नेम इनका आर ही आ रहा है। सी दोनों कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज वो सेम रहेगा। सपोज आपको ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं, अब बताओ चलो इसका नेम कौन सा आएगा? 1 2 3, ये नेम कौन सा आएगा इनका? एस। ओके, अब डबल इंटरचेंज मेथड का यूज करोगे तो ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपस में, H और OH की। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ Br। दिस इज कॉल्ड डबल इंटरचेंज मेथड। तो इसमें 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इनको, इसमें भी सी कोइंसिडेंटली नेम सेम ही आ रहा है, यस। ओके, बट डबल इंटरचेंज मेथड है वो बेटर रहेगी, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपको सपोज ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन है फॉर एग्जांपल, ये Br यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे सपोज H, और यू कैन हैव ऐसे Cl, यहाँ H, यहाँ पे OH। अभी आप इनका नेमिंग करोगे तो सी ऐसे 1 2 3, ए एस होगा। अभी देखते हैं डबल इंटरचेंज में कौन सा नेम आता है। पहले तो आपको 4th नंबर ग्रुप यहाँ चाहिए, Cl की जगह H लाओ, H की जगह Cl, ये दोनों को एक दूसरे की पोजीशन में इंटरचेंज करो। बाकी रहे जो ग्रुप उसको दोनों को एक दूसरे के इंटरचेंज करो, ये दोनों। अभी इनका सी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाउ यू टेल मी, दिस इज ए आर। यहाँ पे आपने नेम दिया तो OS आ रहा था, कौन सा नेम करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? R. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कई बार गलती होने के चांसेस है। ऐसे सपोज ये लो डार्क लाइन वाला ग्रुप, जो नज़दीक वाला ग्रुप नीचे बताया है, तो उस टाइम यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेटर वे यू गो फॉर डबल इंटरचेंज मेथड। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये इसका नेम आपको देना है, तो पहले आप डबल इंटरचेंज मेथड का यूज़ करो। कैसे यूज़ करोगे? स्ट्रक्चर जैसे आपको दिया है इसी तरह ही आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करके लिखना है ऐसे। बट 4th नंबर ग्रुप को किसकी जगह लाओगे? 4th को Sir, behind the plane. नहीं, इसलिए बिहाइंड द प्लेन है तो कौन से ग्रुप की जगह? विच ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन? CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे ये दोनों को इंटरचेंज करो, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH3, तो ऑटोमेटिकली कौन कौन से दो ग्रुप बाकी रहे? OH और COH. सो वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे COOH। दिस इज कॉल्ड डबल इंटरचेंज मेथड। ऐसी तरह से 1 2 2 2 2 3 इट्स आर। डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिस इज अवे फ्रॉम व्यूअर, सो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट्स अबाउट दिस वन? यहाँ पे भी ये दोनों को चेंज करो, तब जाके हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा इनकी जगह, और ये ग्रुप यहाँ जो है इनकी जगह OH आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक बाकी जो दो ग्रुप बचे हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ऐसे CH3 COOH।
Now one number is given to OH, two number is given to acid or COH. COOH, ये 3 नंबर 4। अभी 1 2 2 2 2 3 करोगे तो ये R आ जाएगा, ये भी R है। इसका नेम कैसे देंगे, यहाँ ऑलरेडी फोर्थ नंबर ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर है, तो डायरेक्शन कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर प्रोवाइड कर दो। यहाँ कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन और क्लोरीन से कम है, तो वो थर्ड नंबर आएगा। तो 1 2 2 2 2 3 आप सर्कल ड्रॉ करोगे, सो इट बिकम R। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2? The homomer. Homo, because name same है। What is the relationship between 2 and 3? ABR। Bromine. सर डायस्टीरियोमर सर, ब्रोमीन क्लोरीन है, दोनों रिलेशन तो नहीं, डायस्टीरियोमर तो कब आएगा डायस्टीरियोमर? आगे हमने देखा था डायस्टीरियोमर कब आता है आंसर, जब यहाँ नहीं कनेक्टिविटी तो सेम, वो बॉन्डिंग सिमेट्रिक। कनेक्टिविटी सेम है, तो इसमें बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम नहीं, ये तो अलग अलग कंपाउंड है, तो इसको हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। इसको भी ये जो है ना, इट इज कॉल्ड नॉन स्टीरियो आइसोमर। इसके बीच में रिलेशनशिप है ही नहीं, सिर्फ नेम नहीं देखना है, पहले ये चीज़ देखनी है, दिमाग में ये चीज़ रखना है कि बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, तो ये आप स्पेशल रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हो। गुड, आपका स्पार्क हो गया, दैट इज बेटर। अदरवाइज कई स्टूडेंट बोल देते हैं सर दोनों होमोमर है, क्योंकि इनका फोकस है वो मोर फोकस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पे रहता है, इसलिए। चलो, यहाँ एक वैलेंसी मिसिंग है, एक ग्रुप आपको दिया है, दैट इज ऑन डैश प्रोजेक्शन। तो जो ग्रुप मिसिंग है इनको आपको सी वेज प्रोजेक्शन पे लेना है। इसी तरह जो ये आपके नज़दीक वाला ग्रुप दिया है, तो मिसिंग ग्रुप इज टेकन अवे फ्रॉम योर साइड, वो हाइड्रोजन होगा फोर्थ वैलेंसी। यहाँ पे भी फोर्थ वैलेंसी बाकी है, वो हाइड्रोजन है, वो आपकी साइड आएगा ऐसे। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी दूर है, तो डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका नेम दे दो, चलो डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर किसको देंगे, Cl को, 2 नंबर है पूरे ग्रुप को, इसको 3 नंबर मिथाइल को, 4 नंबर हाइड्रोजन को। इसका नेम क्या आएगा, क्लोरीन वाला कार्बन, एस 1 2 2 2 कैसे ऐसा आएगा, आर आर। इसका नेम आ रहेगा। डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी इस केस में क्या होगा, एक तो आप डबल इंटरचेंज मेथड का यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही ये पूरे ग्रुप जो है क्लोरीन वाला ग्रुप, ये क्लोरीन वाला ग्रुप है, यहाँ H ले लो ऐसे, यहाँ पे OH ले लो, ये मिथाइल ले लो। अभी दोनों को इंटरचेंज करो ऐसे, तो ऐसे आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इंटरचेंज हो गए, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ओके, एक चीज़ है आपके पास कि आप डबल इंटरचेंज मेथड का यूज़ करो, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। अब इसका नेमिंग करोगे तो ये 1 नंबर है, CH2 के साथ Cl है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन था, ये कार्बन है 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसका नेम आएगा S। बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब हाइड्रोजन सिंपल लाइन पे दिया है तभी आप डबल इंटरचेंज मेथड का यूज़ करो, बाकी के केस में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन सिंपल लाइन पे दिया है तभी आपको डबल इंटरचेंज मेथड यूज़ करना है। बट अगर हाइड्रोजन आपको यहाँ पे डार्क लाइन पे दिया है या तो डॉटेड लाइन पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। डार्क लाइन पे हाइड्रोजन दिया है तो डबल इंटरचेंज मेथड अगर नहीं करनी है आपको, तो आप क्या करो, इसका नेम दे दो जो भी नेम मिलता है वो, और बाद में डायरेक्शन चेंज कर देना। तो 1 नंबर इसको देके, 2 नंबर इसको, 3 नंबर CH3 को, 4 नंबर H को। अभी 4 नंबर वाला ग्रुप हमारे नज़दीक है, तो डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज करेंगे। 1 2 2 2 2 3 R हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो S हो जाएगा ऐसे। तो आप ऐसे डायरेक्ट दे सकते हो, उसी डबल इंटरचेंज करोगे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा, बट एक ये भी ऑप्शन है। बट हाइड्रोजन सिंपल लाइन पे दिया है इसी तरह, ऐसे यहाँ कोई लाइन पे, ये दोनों लाइन को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के हाइड्रोजन C और D की जगह सपोज दिया है, तो डेफिनेटली आपको डबल इंटरचेंज मेथड यूज़ करना है। ना यहाँ हाइड्रोजन C ऐसे, इसको हम सोचेंगे हाइड्रोजन हमारे से दूर, यहाँ पे भी ऐसा आएगा। यहाँ पहले मैंने से इसका नेम RS आएगा, पहले मैंने कौन सा कार्बन वाला नेम लिखा है, क्लोरीन वाला।
ओके, उसके बाद OH वाला लिखा है। तो गलती ऐसी मत करना कि पहले यहाँ OH वाला लिख दो बाद में क्लोरीन वाला, क्योंकि आप जब आइसोमर डिसाइड करते हो वेदर दे आर होमोमर और एनेंशियोमर और इट में बी डायस्टेरियोमर, तो उस टाइम कंपेरिजन में आप क्लोरीन वाले कार्बन को क्लोरीन के साथ कंपेयर करोगे, OH वाले कार्बन को OH के साथ कंपेयर करोगे, ये थंब रूल रहेगा। तो इसको चेंज मत करना। अभी देखो मैं पहले क्लोरीन वाला कार्बन का नेम लिखा है, तो यहाँ क्लोरीन वाला कार्बन है उनका नेम देंगे, इसको 1 नंबर देंगे, ये पूरे ग्रुप को 2 नंबर, मिथाइल को 3 नंबर, H को 4 नंबर। कौन सा नेम आएगा? वन टू Sir, टू 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 थ्री, इट इज आर, गुड। अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑलरेडी इट इज अवे फ्रॉम व्यूअर, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे, ये पूरे ग्रुप को नंबर 2 देंगे, कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन है, जो कार्बन सिंपल है मिथाइल वाला, इनको 3 नंबर देंगे, ये 4 नंबर। यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो कौन सा नेम आएगा? आर। गुड। यहाँ हाइड्रोजन मिसिंग है, वो आपके नज़दीक ले लो ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो आपसे दूर, ऐसे आप सोचो। अभी चलो क्लोरीन वाले कार्बन का नेम करना है, तो 1 नंबर किसको देंगे? क्लोरीन क्लोरीन। 2 नंबर बड़े वाले चाहिए इस पूरे ग्रुप को, या 3 नंबर है हाइड्रोजन CH3, 4 नंबर जो है वो H को। कौन सा नेम आएगा इनका? 1 R 2 2 3 आर, गुड। R अभी चलो ये जो सेकंड काइरल सेंटर है जहाँ पे OH है, वहाँ 4 ग्रुप है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं। तो 1 नंबर OH को आएगा, 2 नंबर ये पूरे ग्रुप को, 3 नंबर इनका आएगा, और 4 नंबर जो है वो हाइड्रोजन का। सर्कल ड्रॉ करोगे 1 2 2 2 2 3, एक क्लॉकवाइज टर्न है, आर होगा, बट हाइड्रोजन हमारी नजदीक है तो डायरेक्शन चेंज करोगे, सो इट बिकम एस। ओके, इट बिकम एस। नाउ यू टेल मी व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 3? एनेंशियोमर। 1 एंड 3 की बात कर रहा हूँ। 1 नहीं सर होमोमर। होमोमर क्यों आएंगे? नेम सेम है। आपकी नेम जो है उनकी कंपैरिजन करो। क्लोरीन वाला कार्बन 1 में आर है, 3 में भी आर है। यस यस OH वाला कार्बन जो है वो 1 कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 में एस है, यहाँ पे भी एस है, नेम सेम है, तो यस ये होमोमर आएगा। व्हाट्स अबाउट 1 एंड 2? डायस्टेरियोमर्स डायस्टेरियोमर, क्योंकि यहाँ सम पार्ट सिमिलर, सम पार्ट इज अपोजिट। लाइक क्लोरीन वाला कार्बन दोनों में आर है देखो, बट बाकी OH वाला कार्बन एक में एस है, दूसरे में आर है। इसी तरह व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड 3? डायस्टेरियोमर। दे आर आल्सो डायस्टेरियोमर, गुड। चलो आपका माइक बंद कर दो बाद में, जैसे ही आप आंसर दे देते हो उसके बाद मैं जब यहाँ बोलता हूँ तो आप माइक इसको ऑफ कर देना, क्योंकि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस आएगा। So see, this is the way to give a RS nomenclature to Fisher projection. This concept we have met. See, it is clear. Now our very important topic is see plus, ये जो certain names है compound को plus SC minus SC name देते हैं, this is called synclinal. ये जो गोच प्रोजेक्शन है या तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में नेम ऐसे देंगे। सिनक्लिनल है, ABSC मीन्स सिनक्लिनल, इसको प्लस सिनक्लिनल बोलेंगे, माइनस सिनक्लिनल। ये दोनों चीज़ें हैं। जब एंगल 60 है दो ग्रुप का, तब इसको नेम SC माइनस SC देंगे, और SC प्लस SC एंड माइनस SC, ये जो है इनको बोलेंगे एंटीक्लिनल। ये कब नेम देंगे इनका? जब एंगल आपका 120 है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में ज़्यादातर होगा, ये आपको गोच कन्फर्मेशन में मिलेगा। और दो ग्रुप आपके जो सामने है तो वहाँ पे 180 एंगल होगा, इनको एंटी प्लेरिप्लेनर बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड AP। देखो इसी तरह ये जो है ना आपका एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है, सपोज यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl।
अभी आपका ये फ्रंट कार्बन है, सी आपको फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन वहां पे एक ग्रुप जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप चूज करना है? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। सी फ्रंट कार्बन पे तीन ग्रुप है। सो फर्स्ट सी इनके जो रूल्स है, सिलेक्ट हायर प्रायोरिटी ग्रुप एट फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन। दूसरा जो है, ड्रॉ an arch from front to rear in short way, in shortest route. If it has angle 60, so it is called as C. If it has angle 60, so it is called as C. If it has angle 120, so it is called as C. 60 एंगल पे कौन सा नेम देंगे? अगर थीटा इज 60 SC sin inclinal, theta is 120 SC, theta is 180 AP। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस साइन यूज करेंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। इसको आपको फॉलो करना। चलो ये तीन ग्रुप बताओ, फ्रंट कार्बन पे कौन कौन से तीन ग्रुप है? OH मिथाइल और हाइड्रोजन। तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? फ्रंट कार्बन पे OH OH को। OH। दिस इज योर फ्रंट कार्बन वाला रेफरेंस ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। व्हाट्स अबाउट रियर कार्बन? सब Br, Cl और H। तो इसमें से कौन सा ग्रुप चूज करेंगे? सब Br। अभी ये देखो, फ्रंट टू रियर सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ये लॉन्गेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट रूट है, तो इस रूट को हम पसंद करेंगे। पूरा सर्कल 360 का है, तो ये एंगल कितना होगा? 60। इट इज 60 डिग्री। सो 60 है तो नेम इसका कौन सा नेम देंगे? प्लस SC। और क्लॉकवाइज है तो इसको सी प्लस SC बोलेंगे। इसी तरह सेम कन्फिग्रेशन में यहाँ पे सपोज लिखता हूँ HCl3 OH Br Cl H। now you tell me, this is your front group, this is your rear group। अभी सर्कल ड्रॉ करो, अगेन इट इज 60, बट इट इज ऑन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। so it is called minus SC। what is the relationship between these two? These two are plus SC and minus SC are enantiomer। अभी देखो ये कन्फिग्रेशन जो है, इसको ये जो है ना, इनको मैं इक्लिप्स कन्फिग्रेशन की तरह यहाँ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज इक्लिप्स, लुक एट हियर। इस कार्बन के पीछे इस कार्बन है, तभी एंगल 120 होगा इक्लिप्स में। अदरवाइज स्टेगर्ड में दो ही एंगल पॉसिबल है। स्टेगर्ड में कौन कौन सा दो एंगल पॉसिबल है? या तो आपको 60 मिलेगा या आपको 180। स्टेगर्ड में दो ही एंगल सी पॉसिबल है, इधर 60 और 180। यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ पे एक, यहाँ पे है। सी आप जैसे ही आप ये ब्लू कलर वाले ग्रुप और ग्रीन कलर वाले ग्रुप के बीच में एंगल देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये ग्रीन कलर वाले जितने भी ग्रुप है उसके भी और ब्लू कलर वाले ग्रुप, वो दोनों के बीच में आप एंगल देखोगे तो आपको पता चलेगा दो ही एंगल पॉसिबल है। कौन कौन से दो एंगल? आइदर 60 और 180। 120 एंगल इसमें पॉसिबल नहीं है, बट फॉर दैट यू रिक्वायर्ड इक्लिप्स स्ट्रक्चर। चलो यहाँ रेफरेंस ग्रुप ब्रोमीन है, यहाँ कौन सा ग्रुप रियर ग्रुप कार्बन पे रेफरेंस ग्रुप है? सर क्लोरीन। कहाँ पे क्लोरीन है? तो फ्रंट कार्बन पे है। हाइड्रोक्सी। यहाँ सी OH है, H है एंड CH3, इसमें OH रहेगा। तो कितना एंगल होगा? 120। तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज है तो प्लस SC। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस माइनस SC। गुड। यहाँ पे आप सपोज लिखते हो OH।
सो दिस बिकम्स ए माइनस ए सी। इसको एक फ्रंट वाला ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, ये रियर वाला ग्रुप है, सो इट बिकम माइनस ए सी। अभी देखो यहाँ पे आप, ये फ्रंट वाला ग्रुप है और ये आपका रियर ग्रुप है। यहाँ आप क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज, ये कोई भी रूट शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, दोनों रूट सेम ही है। सी 180 एंगल पे दोनों साइड से डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखते, वेदर यू आर गो टू मूव फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इधर इन एंटी क्लॉकवाइज। सो इट इज सिंपल एंटी पेरिप्लेनर, इसके लिए हम AP लिखेंगे, एंटी पेरिप्लेनर। ये ग्रुप समझ में, ये बात समझ में आ गया आपको कैसे Yes. नेमिंग देंगे? ओके। एक चीज ये है, चलो पहले मेरे को आप फ्रंट कार्बन पे प्रायोरिटी बताओ, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे फ्रंट के लिए? ब्रोमीन सर, बट दो ब्रोमीन दो है। ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन में से कौन सा ब्रोमीन लेंगे? सर ऊपर वाला। ऐसा नहीं है, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो मोर देन 1 इन नंबर है, माइक बंद कर दो पहले। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो एक से ज़्यादा है, दो ग्रुप है, तो कन्फ्यूजन है किसको नंबर देंगे, इनको देंगे या इनको। तो कन्फ्यूजन है, जब दो बड़े ग्रुप है तो उस टाइम इनको आप छोड़ दो एंड गो टू दी प्रायोरिटी टू रिमेनिंग ग्रुप, तो आपको ये चूज करना है। दो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है तो उस केस में आपको ये थर्ड वाला सिलेक्ट करना है, थर्ड गोट प्रायोरिटी। ओके, दो सपोज सेम ग्रुप है, दो बड़े आदमी झगड़ते हैं, तो जो बड़े आदमी के बीच में लड़ाई होती है तो थर्ड जो है वो उसमें बाजी लगा देता है अपने, इसी तरह होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, दो BR है, कंपटीशन इज मेड बिटवीन 2 BR, देन थर्ड गोट प्रायोरिटी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3 है, H है और Cl है, Cl है, तो Cl को हम रेफरेंस चूज करेंगे। एक क्लॉकवाइज टर्न हो गया, एंगल 60 है, तो इट इज कॉल्ड प्लस AC। ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ तक समझ में आ गए आपको? Yes, sir. यस। गुड। नाउ सी टाइप्स ऑफ कायरलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो है ना हम टाइप्स ऑफ कायरलिटी लर्न करेंगे, उसके बाद टॉपिसिटी लर्न करेंगे, सेकेंड टॉपिक टॉपिसिटी। उसके बाद क्रैम्स प्रिलॉग, ये सारे रूल्स है वो इसको लर्न करेंगे। ऐसे ये तीन चीज़ें लर्न करेंगे, ये तीन चीज़ के बाद सारे नेट एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वहाँ तक है ये पूरा चैप्टर। सो सी कंपाउंड कायरल होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? टाइप्स ऑफ कायरलिटी का मीनिंग यही है, कंपाउंड इज कायरल दैट इज बिकॉज ऑफ फोर पॉसिबल रीजन फॉर अ कंपाउंड बिकम अ कायरल। कौन कौन से चार रीजन है? फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, एनी कंपाउंड विच इज कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। वो सारी चीज़ें आपने अभी RS नोमेट लेक्चर सब कुछ दिया, वहाँ से पता लग गया आपको कि कंपाउंड इज कायरल ड्यू टू कायरल सेंटर। सेकेंड वन इज कंपाउंड इज कायरल ड्यू टू कायरल एक्सिस। अभी जो बाकी के तीन है ना, वो ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी कंपाउंड कायरल है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन एंड हेलिकल कायरलिटी। कायरल एक्सिस में आएगी एलिन कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, बाइफिनाइल कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड की हम कायरलिटी लर्न करेंगे। थर्ड जो है कंपाउंड इज कायरल दैट इज बिकॉज ऑफ कायरल प्लेन। थर्ड one is why compound is chiral. So compound is chiral because of presence of chiral plane. chiral plane है तो भी compound chiral हो सकता है, और उसके इसके एग्जाम्पल में आएंगे यहाँ पे, एक तो जो है वो अंशा कंपाउंड, दूसरा है वो साइक्लोओक्टेन, बट स्पेशली ट्रांस ज्योमेट्री, ट्रांस साइक्लोओक्टेन, ये इसमें हम कवर करेंगे कायरल प्लेन में। एंड लास्ट जो है फोर्थ वन दैट इज हेलिकल कायरलिटी। So compound is chiral due to
this four type. It may have a chiral center, it may have a chiral axis, it may have a chiral plane, or it may have a helical chirality. ओके सो ये चार रीजन है, बड़े रीजन, जिसकी वजह से कंपाउंड काइरल होता है. सो नाउ फर्स्ट वी विल टेक काइरल एक्सिस. काइरल सेंटर ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया, वो तो ले लिया है. सो काइरल एक्सिस, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है जो दैट इज एलिन. एलिन मॉलिक्यूल काइरल है. व्हाट इज एग्जैक्टली एलिन? सो सी एलिन इज नथिंग बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप, एक ग्रुप आपकी नज़दीक है. सी एक ग्रुप इज ऑन योर साइड, दिस इज अवे फ्रॉम योर साइड, और एक ग्रुप है वो इन दी प्लेन रहेगा ऐसे. सो दिस इज एलिन मॉलिक्यूल. अभी एलिन मॉलिक्यूल में एक बात यहाँ पे सी दो डबल बॉन्ड है, पाई 1 एंड पाई 2, और ये जो कार्बन है सेंट्रल वाला, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि दो ही डबल बॉन्ड, दो ही पेयर है, दो ही बॉन्डिंग पेयर है. सो फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज सी ये पाई 1 एंड पाई 2 डबल बॉन्ड है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऐसे रहेंगे, 90 पे रहेंगे. इनका जो प्लेन है इनको एकोमोडेट करता है वो प्लेन ए प्लेन एंड पाई 1, वो भी एक दूसरे को सिग्मा 1 बोल दो, तो सिग्मा 1 एंड पाई 1 वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे है. सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा 1 एंड पाई 2? ए 90 डिग्री पे है, सिग्मा 1 एंड पाई 1, पाई 1 एंड पाई 2 90 डिग्री पे है. सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा 1 एंड पाई 1 पाई 2? पैरेलल सर. पैरेलल रह जाएगा, अल्टरनेट पैरेलल रहेगा. अगेन पाई 2 एंड इसका नजदीक वाला ग्रुप ये परपेंडिकुलर है सिग्मा 2. पाई 2 एंड सिग्मा 2 आर परपेंडिकुलर. सो व्हाट्स अबाउट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2? ये दोनों सी नजदीक वाले दोनों है वो परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल, अगेन परपेंडिकुलर. ओके, तो ये परपेंडिकुलर आएगा. अल्टरनेट जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, पैरेलल रहेगा, और नजदीक वाला है वो परपेंडिकुलर. सिग्मा 1 एंड पाई 1 परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा 1 एंड पाई 2 पैरेलल आएगा. अगेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 परपेंडिकुलर रहेगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है काइरलिटी के लिए? व्हाट इज कंडीशन टू मेक कंपाउंड काइरल? ये काइरल एक्सिस है, सी पासिंग थ्रू दिस कार्बन, ये काइरल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड काइरल एक्सिस. अभी ये कंपाउंड काइरल है, उसका मेन रीजन है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिमेन्स परपेंडिकुलर. वेरी गुड, परपेंडिकुलर. तो उस केस में आपको ये डबल बॉन्ड जो है ना वो इवन नंबर होने चाहिए. डबल बॉन्ड्स आर इवन. ओड लिखोगे तो क्या होगा? ऐसी तरह से आपने ओड डबल बॉन्ड लिख दिए, 3 डबल बॉन्ड लिख दिए. सर वो पाई तो मतलब पाई बॉन्ड इस केस में क्या होगा? सी दिस इज पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3. सी लुक एट हियर, सिग्मा 1 एंड पाई 1, व्हाट हैपेंस? सिग्मा 1 एंड पाई 1, सर वो पैरेलल आ जाएगा. नहीं नजदीक वाला की बात कर रहा हूँ. सिग्मा 1 एंड पाई 1 परपेंडिकुलर सर. परपेंडिकुलर. सिग्मा 1 एंड पाई 2 पैरेलल. सिग्मा 1 एंड पाई 3 परपेंडिकुलर. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 पैरेलल. पैरेलल. ये पैरेलल आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल और काइरल हो जाएगा. तो पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, डबल बॉन्ड है वो 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे. सी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर 3, तो डबल बॉन्ड इवन होने चाहिए, तभी वो 4 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काइरल एक्सिस मेंटेन रहेगी. दिस इज फर्स्ट जॉब. सेकेंड जॉब जो है वो ये है कि ये दोनों ग्रुप ए इज नॉट इक्वल टू बी होने चाहिए एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी. अगर ऐसा होगा ये भी सेम है तो इसमें से आप प्लेन सोचोगे सी एंड डी में से, तो ये दोनों मिरर इमेज मिल जाएगी. एक्चुअली ऐसे ये हमारी नज़दीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, बी हमारे से दूर है, सी हमारे से राइट हैंड साइड है, डी लेफ्ट हैंड साइड है. तो अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी होगा तो आप ऐसे प्लेन सोच सकते हो, मिरर इमेज मिल जाएगा. इसी तरह सी इज इक्वल टू डी है तो काइरल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी है तो. इसी तरह अगर आपको C इज इक्वल टू डी है तो क्या करोगे? कौन सा प्लेन आप सोचोगे? ए और बी में से पास होता हुआ प्लेन जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा व्हेन C इज इक्वल टू डी, तो अभी मॉलिक्यूल और काइरल हो जाएगा.
तो कंडीशन कौन सी रहेगी कायरलिटी के लिए? ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। चाहे ऐसा हो सकता है यहाँ जो दो ग्रुप है वही सेम हो, ए इक्वल टू सी हो सकता है, ए इक्वल टू डी भी हो सकता है, बी डी इज इक्वल टू बी हो सकता है, सी इज इक्वल टू बी हो सकता है, ऐसा चल सकता है। बट एक कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए, यहाँ जो दो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ जो सेट दिया है वो सेम सेट यहाँ पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन होगी तभी मॉलिक्यूल कायरल रहेगा। सी दिस इज अ कंडीशन फॉर कायरलिटी। नाउ टेल मी द आंसर, सी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सी दिस इज अ एलिन मॉलिक्यूल्स। नाउ टेल मी डिस्टेंस अबाउट, ये ए आपके नज़दीक है, बी आपसे दूर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। नाउ दिस इज यू कॉल डिस्टेंस D1, this is you call distance D2. Which distance is longer? Which one is correct? D1 equal to D2, D1 is greater than D2, D2 is greater than D1. कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? चलो बताओ। D2 D1 D से नहीं, D2 बड़ा है D1 से। D2 बड़ा है सर D1 से। D1 से D2 बड़ा है। गुड, अच्छा लॉजिक लगाया है। ये प्लेन है और ये प्लेन है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे होकर इसमें एलिन में। ये कहाँ पे है बताओगे मेरे को? ये आपके मोबाइल स्क्रीन के आगे है या पीछे? आगे सर आगे आगे above तो the plane। आप ऐसे एक पेन रख दो कार्बन के ऊपर, आपके मोबाइल को टच करते हुए ऐसे कार्बन के ऊपर एक पेन रख दो। जो पेन का टॉप पार्ट है वो ए रिप्रेजेंट करता है। अभी आप डिस्टेंस मेजर करो सी और डी के बीच में। पहले क्या करो, आप जो कार्बन है वहां पे इसी तरह एक पेन रख दो जो ये आपकी नजदीक है ऐसा सोच के, वहां से आप सी और डी की लेंथ मेजर करो। कैसे आएगी? इक्वल आएगी। सेम आएगी। ये ग्रुप प्लेन में नहीं है, इंदी प्लेन होता तो आप सही बात थी कि D1 कम है D2 ज्यादा है। ये तो सेम आएगी। सी ये कार्बन है वो सेंटर में है, सेंटर से आप सी की साइड लाइन ड्रॉ करो या डी की साइड, दोनों सेम ही रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस है सी वाले कार्बन से और कार्बन से जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। सी लुक एट हियर, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस रिमेन सेम। आपका ये आपके नजदीक है, बी पीछे है, तो वेदर यू आर मेजरिंग दिस टू आर सेम, सी दिस इज करेक्ट। कई स्टूडेंट से गलती करते हैं। इसी तरह आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि यहाँ चलो बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ सी और यहाँ डी है, ये डिस्टेंस D1 है फॉर एग्जांपल, ये डिस्टेंस जो है वो D2 है। कौन से डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप है? सेम ही रहेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग्स रिगार्डिंग एलिन कंपाउंड्स। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस which type of alene are optically active, how to give RS nomenclature to alene. Okay, all these things we will discuss in the next lecture. So in the evening lectures we will going to discuss stereochemistry of spiro compound, stereochemistry of biphenyl, stereochemistry of compound having chiral plane and helical chirality. All these things we will complete it today in the evening lectures. Evening में खत्म हो जाएगा, 3-4 lectures में पूरा stereochemistry cover हो जाएगा. So thank you very much for joining in this lecture. Thank you all. Thank you sir। Thank थैंक यू।